Manas, okay, so let's start your mock for NPCIL. Please go ahead and introduce yourself briefly to us. So my name is Manas Kumar. I am from Allahabad. I did my schooling from Allahabad, and I did my BTech in mechanical engineering from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. And my hobbies are playing chess and watching Sorry, playing chess and movies. watching Random- movies. Yes. Okay. So what kind of movies do you watch? Sir, like the casual movies for that time pass. Like, Any specific movie, fiction movies, romantic movies? sir, they know that such kind of just choose what जो भी सब देखने में थोड़ा सा देखने में अगर अच्छी लगने लगे तो देख लेते हैं, चाहे वो साइंस फिक्शन हो या फिर नॉर्मल कोई रोमांटिक। So when did you complete your BTech? सर 2019। Okay, and what are you doing after that? सर तब उसके बाद से मैं 2019 से ही सर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और सब वेरियस एग्जाम सर जो पीएसयूज के और गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं सब वो मैंने लगातार। So why don't you go for higher education? Sir, due to some family reasons, sir, I didn't go for. Okay. Okay, so Manas, you are saying that you have interest in joining PSUs, right? Yes, sir. So why PSU want to join PSUs? सर बेसिकली सर पीएसयू सर जो स्पेसिफिक एनपीसीआईएल की बात करें तो ये हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर फील्ड में से वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अलॉन्ग विद दैट सर इसके वर्क अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं और तीसरी चीज़ सर कि सोशल और वर्क लाइफ बैलेंस इसमें काफ़ी बेहतर है, तो एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल कैरियर के लिए सर ये बहुत अच्छा होता है। Okay. So you are open to for any PSUs, right? Yes, sir. In power generation, so yes, sir. Wherever the mechanical work is mechanical related issues. So, what is special about the NPCL? Why you want to join NPCL specifically? Sir, NPCL, sir, basically, sir, it is a nuclear related, basically power generation field. So there is no specific as the all PSUs are sir very good in their work. They are doing very well. So, but in the I interested in related to power generation field. So this is one of the very good option. Okay, and Manas, what was your BTech project? सर BTech project सर मेरा था BARS cycle के सर COP का comparison using different fluid phase refrigerant का. And what are your favorite subjects? So favorite subjects are basics of material science, strength of material, heat transfer, basic thermodynamics, and refrigeration and air conditioning. Okay. So, Manas, can you let us know something about NPCIL? Since you're interested to join NPCIL, what do you know about NPCIL? Sir, NPCIL, sir, it is a public sector enterprise which is work under the Department of Atomic Energy, which basically deals with the construction of the new projects and commissioning it and running it and maintenance also of those projects. Basically, these handle this kind of thing and generate the electricity through this. So, what is the total power capacity that is being handled by NPCIL as of now? So around 7,000 megawatt is currently being handled by NPCIL. So how much percentage is it of the total power generation in India? So around 2 to 3%, 3 to 4% around. And which sector contributes the most? So thermal sector contributes. Okay. So what are the reasons why this nuclear power generation is so less in India?
Sir, first of all, sir, the cost of the nuclear fuel is one of the most, and availability of that nuclear fuel. Availability of nuclear fuel is less, so that's why there is uh, less expansion of the nuclear uh, energy. Mhm. So these are the main reasons. So fuel costs, fuel availability is the main reason, and sir, other reason is the like public issues, like public is stability लेके uh, जो है anxious रहती है कि जो है No, why accident में. fuel is not available easily? Oh, you are saying that fuel is not available easily. Why is it the case? Sir, in India, sir, basically we use the uranium-based nuclear reactors. So Mhm. in India, sir, fuel-based nuclear fuel ores are very less available. So we have Mhm. to export all of from the other countries. So, So import, sir. so what is the issue? If you're importing, it is not like it is very high in demand everywhere. Not all the countries are producing. So you can import. Maybe from where we are importing? Do you have any idea? Sir, exactly, sir. I'm not sure about that. It is something like Kazakhstan and Russia is, and the few Australia is also one of the uh, producer of the uranium. Mhm. Another, sir, no, I don't. Mhm. And what is total installed capacity of India as of now? Sir, nuclear power plants. No, 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 no. Total. You already told about the nuclear. Total. I'm talking Uh, about total. Total around, sir, 2.5 lakhs megawatt around here, or around 2.5 to 3 lakh megawatts is around the total installed capacity. Mm. So you belongs to which state? Sir, I'm from South Uttar Pradesh. So which is the power plant in Uttar Pradesh? Sir, Basically, Narora, sir, Narora power plant. Narol. Narora, sir, in Mm. Bulandshahr. What is this capacity? Sir, around 1,000 megawatt. 1000 megawatt. Yes, sir. So how many nuclear reactors are over there? Exactly, sir. I have not much idea, but it is around, I think, two stations which are working there. Two nuclear reactors. Two nuclear. 400. Yes, sir. Around 5. So which country is supporting this particular plant? Sorry, sir. Right. Mhm. Okay. Okay. So Manas, you mentioned about your chess also, right? That your hobby is playing chess and watching movies, etc. Yes. Right? So Yes. who is the current world champion in chess? So Magnus Carlsen. In men's field, sir, Magnus Carlsen. Which country? Sir, Norway. Mhm. And in women category? Sir, exactly, I am not aware of that. I think, sir, it is Hu Yufan from China. It is. I'm exactly not sure. I think it is Hu Yufan, but which were earlier. And what about India? Who are the major players from India? So major player in there are various players. Sir, Vishwanathan Anand, the one of the always the in the top rank for the last 30 years. And second is the Vidit Santosh Gujarati, Pentala Hari Krishna, Adhiban Bhaskaran, and सर यंग एज में सर निहाल सरीन और आर नंदा खेलते हैं सर. और विमेंस में कुनेरो हेम्पी और हरिका द्रोणावली सर, ये लोग. Mm, okay. Okay, so let us, Manas, come to your favorite subjects now. You are saying you have mentioned some of your favorite subjects, right? Yes, sir. Okay. So you mentioned that material science is also one of your favorite subject.
Yes, sir, basic of materials. What is a phase diagram? Sir, phase diagram basically, sir, shows the properties of the depending upon the which kind of pair we are using, the binary, single element, two element, or three element, and it shows the variation of the structure of the material with respect to its temperature and composition. Hmm. So, do you know about the phase diagram for iron carbon? Yes. So, what is the maximum percentage of carbon that can be accommodated? Sir, maximum accommodated percentage is around 6.67%. But iron carbon diagram, if you talk about the equilibrium diagram, it exists around up to 100% of the carbon. But practicality limit will limit it around 6.67%. No, so iron carbon diagram displays 100%. So if we talk about the true iron carbon diagram, it exists up to 100% carbon. But there is a practicality limit, so we just only use it up to 6.67% carbon. What is the problem? So the problem is that at the 6.6% carbon, there is a 100% formation of the martensite in the total volume. After that, whatever we add the carbon in the material, that comes out as the carbon flakes in the total volume, which is not practically useful in practical life. So generally we avoid that part of the phase diagram. We generally use up to the 6.6%. Mm. So, what is lead borate? So laterite is a microstructure which is formed uh, on the composition of the 4.3% of carbon around, and when it is when the iron carbon percentage that of called as the retracted composition cooled around 1150 degrees Celsius. Below that, there is a formation of the lead. And have you heard about annealing process? Yes, sir. So annealing process is basically, sir, is the process by which we produce the ductility and toughness in the material by the heat treatment. Through this process, what we do is we improve the ductility. Yes, sir. Ductility improves. So how we are able to do that? Sir, in the annealing, sir, we relieve the stress and form the new recrystallized grain, which are bigger in size, which promotes the ductility of the material. No, so recrystallization and bigger grains, how they are leading to the improved this ductility? Sir, if the grain are bigger, so the area of the grain boundary will get decreased, so there will be easy to movement of the dislocation that will help to increase in ductility of the material. Can you show me how that, and what happens to the strength? Sir, strength, it depends upon what material is annealed. In basically the strength little bit decreased. Can you show me? Can you display that if we carry out the annealing? Yes, sir. At what temperature do we carry out the annealing? Sir, it just happened around the upper recrystallization temperature for hypoeutectic steel, and hypereutectic steel we carried about in about lower recrystallization temperature around the 723 degrees Celsius. Can you show me the variation of that ductility and strength as you move through this process of recrystallization, or as you move from, let us say, room temperature toward the recrystallization temperature? So at the annealing temperature when you reach. So can you just display those variation of strength and this ductility? Sorry, sir. On graph, I don't see how that will vary. But basically, sir, that strength is decreased generally
due to that, and the toughness is ductility increase. So overall, the area of the total stress diagram increases. So on behalf of that, we say the toughness is increased. Area of stress strain diagram increases. So yes, that's why the toughness how it increases. So toughness you are increasing. How you are increasing the toughness? Can you display it on the stress strain diagram? So let me try. So here I have tried to do that. So earlier, sir, when annealing is not done, there is a strain in the material. Stress concentration is more. So the material strength is little bit higher, but it cannot be plastically reformed as much. But when we done the annealing and recrystallization is done, so now the material can go like this. Although strength is decreased, but ductility is increased. The overall area of the diagram of toughness is increased. Stress diagram is. Okay. Okay. So Manas, okay. So do you know about isotropic material? Difference between isotropic and homogeneous material? सर आइसोटॉपिक मटेरियल सर आइसोटॉपिक अगर इस टर्म में कहा जाता है कि अगर किसी पॉइंट पे हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में देखें तो वो हर डायरेक्शन में उस पॉइंट पे प्रॉपर्टी हमारी सेम आएगी, तो उस मटेरियल को तो हम आइसोटॉपिक बोलेंगे। होमोजेनियस सर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दो पॉइंट के बीच में देखते हैं कि तो सर होमोजेनियस मटेरियल सर उस मटेरियल कहेंगे कि सर दो पॉइंट्स के बीच में सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे, अगर प्रॉपर्टी सेम आती है तो वो हमें होमोजेनियस मटेरियल। ठीक है। Okay, Manas. So over to Vishal sir now. Okay, Manas. So let me ask you some question from power plant. Yes, sir. Manas, if I will ask you three very important factors which are actually related to the power plant. Yes, sir. Availability factor, the capacity factor, and reserve factor. Can you tell me the difference and what actually these factors are? And can you tell me the significance also? The reserve factor, availability factor, and the capacity factor. सर एग्जैक्टली सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट सर टर्मिनोलॉजी से जितना मुझे समझ में आ रहा है सर, अवेलेबिलिटी फैक्टर एक ऐसा टर्म है कि अगर हमारा पावर प्लांट पूरे फुल स्ट्रेंथ में चल रहा है, सारे सारे यूनिट्स में चल रहा है, तो जितने भी पावर हमारी जनरेट हो रही है वो अवेलेबिलिटी फैक्टर होगा। और सर कैपेसिटी फैक्टर ये है कि सर कि हम कितने परसेंट ऑफ लगभग मतलब कितना हम जनरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कितना हम जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम। और रिजर्व सर ये इस तरह से होगा कि कितना हम हमेशा स्टैंड बाय में रखे हुए हैं कि उसको हम कभी भी कोई भी फेल होता है, कोई प्लांट मतलब कोई स्टेशन फेल होता है तो उसको हम ऑपरेट करके उतना पावर कितना रखते हैं? Generally, how much we will keep in reserve actually? सर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो सर मेरे ख्याल से 90% से ऊपर ही सर ये ऑपरेट होता है, और बाकी सर थर्मल का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं। Okay, Manas, let me ask Yes, sir. some question from Rankine cycle. Yes, sir. Can you draw the supercritical Rankine cycle, Manas? Yes, sir. I will just. So this is the sir. On the TS diagram, sir, ये मैंने draw किया sir, supercritical. You are getting a straight line. Some straight line you have drawn. Yes, sir. Yes, sir. Straight line. Oh, like. So yeah, ideally मैंने draw किया. These are the vertical lines, but even some straight line I can see some vertical line. Yes. 3 to 4 days. Yes, yes, yes. Yes, sir. ये सब
सर जो हमारा सर सुपर क्रिटिकल जो सर हमारा विदाउट लेटेंट हिट के जो फेस चेंज हो रहा है सर, ये उसको शो कर रहा है। So you will get a straight line here. सर एग्जैक्टली सर मुझे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन का नहीं पता है सर। मैंने एक जगह से देखा था, वहाँ स्ट्रेट लाइन बना हुआ था, बट मे बी So सर this ये is you're doing TH float or TS float? Which one? टीएस डायग्राम है, टीएस S entropy. एंट्रोपी एसिड। हाँ You know, what advantage we are having using this supercritical Rankine cycle? सर इसकी इफिशिएंसी बेसिकली सर ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर सर हमने ज़्यादा अचीव किया है हायर प्रेशर पे। दूसरा ये कि सर हमें इसमें हमारा बॉयलर की साइज सर छोटी हो जाएगी, बिकॉज कि यहाँ पे हमारा फेस चेंज का प्रोसेस नहीं हो रहा है। मतलब फेस चेंज मतलब कि लेटेंट हीट का यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो हमारा डायरेक्टली जो है एक ही बार में वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें उसे रिसर्कुलेट करने की आवश्यकता तो नहीं है। Can you name any boiler like which is currently known as a supercritical boiler? Manas, where actually we produce supercritical steam. सर सॉरी सर, मुझे सर अभी नाम नहीं आता है। What is typical point for water, Manas? सर क्रिटिकल पॉइंट सर वाटर के लिए सर 221 बार के अराउंड एंड टेम्परेचर 373 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। Manas, what is availability? यस सर। What is availability? सर अवेलेबिलिटी सर बेसिकली सर द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी वी कैन यूज फ्रॉम अवेलेबल अमाउंट ऑफ हीट, maximum value of work that can be obtained from that. What is availability function for a closed system? One minute. Availability function. Can you tell me the availability function for a closed system? Sir, by the value I know sir that it is equal to sir U minus T naught S. T naught is basically the surrounding temperature, S is the entropy, U is the internal energy of the system. Is the availability function for closed system? Yes sir. You heard about Helmholtz function? Yes sir. Basically sir currently हम मुझे याद नहीं आ रहा है। Okay. So, Manas, can you tell me something about the some accessories actually, some of the boiler accessories? Yes sir. Hmm. सर जैसे सर बॉयलर एक्सेसरीज में सर इकोनोमाइजर है, रीहीटर है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर है सर। ये बेसिकली सर एक्सेसरीज है। These are the accessories. यस सर। What is the function of a economizer? सर इकोनोमाइजर बेसिकली सर में सर हम वाटर को सर बॉयलर ड्रम में भेजने से पहले हीट अप करते हैं इकोनोमाइजर में थ्रू द फ्लू गैस। So, what advantage we are going to get? सर जो हमारा एग्जॉस्ट गैस से सर जो भी हीट हमारा वेस्ट हो सकता था, उसे हम जो हायर टेम्परेचर था उस हीट को सर हम जो हमारा जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसको इकोनोमाइजर में उस हीट को हम दे के सर उसको यूटिलाइज कर लेते, तो ये हमारी से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। Okay. So, let me ask you some basic questions from this nuclear power generation. Manas, you prepared that? सर नॉट एज मच बट आई विल ट्राई। You heard about binding energy, Manas? सर एग्जैक्टली नॉट नो, बट आई थिंक सर बाइंडिंग एनर्जी इज समथिंग की जो कि न्यूक्लियस के अंदर सर न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड अप करके रखती है। उससे अगर हम ज़्यादा मेरे ख्याल से एनर्जी अगर देते हैं तो न्यूक्लियर हमारा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट। So, in that entire element table, if I will ask you which particular element is having the highest binding energy per nucleon?
सर एग्जैक्टली सर मुझे नहीं पता। So what do you think? It is increased in the direction of the increase in atomic number, or it is decreases in the direction of decrease in atomic number, or it is increases decreases? What do you think? सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सर इंक्रीज होते जाएंगे तो सर बाइंडिंग एनर्जी मेरे ख्याल से डिक्रीज होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है Atomic number एग्जैक्टली। से, atomic number बढ़ने से। सर न्यूट्रॉन बढ़ने सर एटॉमिक नंबर भी सर रिलेटिवली बढ़ता ही है। तो उसको कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो मे बी सर मुझे एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि इंक्रीज होगा मतलब डिक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो। Manish, what are isotopes? सर होता है आइसोटोप ना, सर यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, कार्बन आइसोटोप्स हैं, what it means? ये सर जब किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में सर अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वही सेम सेम जो जो अलग अलग जो हमारे फॉर्म सेम ही एलिमेंट के मिलते हैं उन्हें सर आइसोटोप बोलते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में वेरिएशन आता Number of neutrons different होते हैं। है। यस सर। यस सर न्यूट्रॉन सर में चेंज आएगा सर। लाइक सर कार्बन में सर कार्बन 14 अगर बात करें तो सर उसमें न्यूक्लियस में 14 न्यूट्रॉन्स होंगे सर। सॉरी सर नहीं सर 8 न्यूट्रॉन होंगे सर 6 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में। तो अगर हम कार्बन 12 की बात करें तो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन होंगे। तो ये Number of सर neutrons equal to number of protons। ये सर Number of neutron proton same होते हैं। सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सर वेरी कर सकते हैं। वही सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर हमारा फिक्स हो गया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे फिक्स हो जाएंगे बट अगर हम आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी So how we can produce refrigeration mass? Sir, refrigeration, sir, produced by sir through various system using different cycle. We can produce the refrigeration by lowering the temperature of the uh, our refrigerator space with respect to surround. What is COP? So COP is basically sir our it is shows the our the desired effect with respect to supplied energy is the shows the that rate. What is 1 ton of refrigeration? Sir, 1 ton of refrigeration, sir. Sir, sir, it is basically it is explained in terms of the freezing of 0 degree Celsius ice of 0 degree Celsius water of 1 US 10 that is around 907 kg in 24 hours. So that the rate how at which we have to extract the heat from the system is called as the 1 ton of refrigeration. So what is the latent heat of fusion for water, Manas? Latent refrigeration. Latent heat of fusion. Yes, sir. Sir, sir currently I'm forgetting that. Yes. सर अभी करंट में मुझे सर याद नहीं आ रहा। Any rough idea? सर रफ आइडिया सर वेपराइजेशन का सर अराउंड 2200 किलो जूल पर केजी होता है। इसका सर एग्जैक्टली सर मुझे आइडिया नहीं भी था। So more than that or less than that? सर लेस देन दैट क्यों? हाँ नहीं सर लेस देन होगा सर। यस सर। Okay. So what is the similarity between the this Rankine cycle and the VCRS cycle? सर सिमिलरिटी सर
सर दोनों में सर फेस चेंज का प्रोसेस हो रहा है, तो इस टर्म में इसमें सिमिलैरिटी है, बट दोनों के सर अपने अपने वर्किंग प्रिंसिपल थोड़े अलग हैं। रैंकाइन साइकिल बेसिकली सर पावर प्रोडक्शन में है, और हमारा ये VCRS साइकिल रेफ्रिजरेशन में है, और यहाँ पे सर तीन प्रोसेस सर हमारे बेसिकली सेम होते हैं, फोर्थ प्रोसेस सर थोड़ा डिफरेंट होता है। रैंकाइन साइकिल में हमारा सर पंप का यूज होता है, और लेकिन हमारा इसमें VCRS में हम कैपिलरी ट्यूब का इसके लिए यूज करते हैं टेम्परेचर ड्रॉप के लिए। तो वो तो सर वो पावर प्रोड्यूसिंग और कूलिंग का ये तो बेसिक डिफरेंस तो है ही, बट इक्विपमेंट वाइज भी सर ये डिफरेंस। What is throttling, Manas? Sir, throttling is sir basically it is a process in which sir we pass the fluid through the narrow passage, or against the friction we try to pass. Can you tell me the any one to throttling device? Name of the throttling devices? Sir, one is I know sir the capillary tube. Basically, sir, I have seen the capillary tube. Another Manas, sir what is thought. Nusselt number? Sir, it shows the sir a ratio of the convectivity of the fluid with respect to its conductivity. In terms of momentum diffusivity, yes, sir, No, I have just take your time, Manas. Don't mix the things. no, sir, I have earlier said it correctly, sir. That is a convectivity of the fluid with respect to the conductivity of. Conductivity. What do you mean by convectivity? There is no such term actually. There is no such term convectivity of fluid. Conductivity of fluid, there is some property, but there is no such term known as convectivity of fluid. So heat transfer coefficient, तो सर बेसिकली हम convectivity के तो मैं propose करता हूँ So it is a ratio of H by K, you want to say? सर HD by के बेसिकली सर dimensional D by number. K. So from formula you are trying to make the definition of this Nusselt number. And sir, I forget sir that not getting that. So what is Nusselt number for fully developed laminar flow in a pipe, Manas? Fully developed pipe, it For is the around constant heat flux. so it is a 4.64. 4.36. Oh yes sir, 4.66. That was We are having constant Nusselt number. yes sir. So what equation we will use for finding out the convection heat transfer in case of fully developed turbulent flow in pipe? There is a very famous equation. Yes sir, there is a equation to find that. Just tell me the name of that equation, Manas, if you are if you can recall it. Titus exactly. I mean Titus Bottas is something like the name is that. Titus Porter equation. Yes, sir. That is says that the Nusselt number is equal to 0.023 multiplied by Reynolds number to the power 0.8 multiplication by Prandtl number to the power n. So n depending upon the if you are heating or cooling, that vary. If that is equal to 0.4 for if the fluid is being heated, and 0.3 is when the fluid is being cooled. Manas, what is the meaning of your name, Manas? So Manas is means something related to the man, sir, the whatever the our thinking, sir, basically sir हम लोग जो कहते हैं. Power of thinking. पावर ऑफ थिंकिंग सर नहीं सर, पावर ऑफ थिंकिंग नहीं कहते, मतलब बस जैसे कि सर मन एक टर्म यूज करते हैं जो सर हिंदी में कि मन को सोचने में यूज करते हैं. अच्छा, कि हिंदी में यूज करते हैं ना, बोलते हैं कि मानस अवतार या मानस रूप बोलते हैं सब. सर इसके लिए अगर सर कहा जाए तो एक आइडियोलॉजिकली कहा जाता है कि एक परफेक्ट कैरेक्टर से रिलेटेड ऐसा कहा जाता है कि मानस अवतार हैं ऐसा, तो वो उस टर्म में सर यूज किया जाता है. तो सर वहां वो पे एक क्या मतलब होता है उसको, मानस को किस किस रूप में वहां पे रखते हैं?
सर कैरेक्टर से रिलेट करते हैं कि सर प्योर कैरेक्टर या एक आइडियोलॉजिकल वे में सर उसको कहा जाता है, तो उसे रिलेटेड कहा जाता है कि मन से रिलेटेड है कि अच्छे मन वाला व्यक्ति या जो एक आइडियोलॉजिकल फॉर्म में कहा जाता है। तो आपने कौन सी क्वालिटी जो है वो एडोप्ट की है लाइक फ्रॉम दिस नेम मानस? सर एग्जैक्टली सर मैं इतना आइडियोलॉजिकल वे में तो नहीं है सर, बस थोड़ा थोड़ा सर चीज़ें जो है मैंने कोशिश की है कि मैं सही से करूँ, जो ऑनेस्टली करूँ चीज़ों को, वो एक तरह से सर ये इसको फुलफिल करने की तरह से कोशिश। So you want to say you're a honest person? Sir, 100% cannot say, but I try always to be honest. Okay. Okay, Manas. I think now we can give you the feedback. Yes, what do you, Glenn, sir? मानस, पहली बात तो एक कि थोड़ा वॉइस में क्लैरिटी नहीं लगी मुझे। आप बीच में ना जब लाइन बोल रहे हो तो ऐसे लगता है कि बीच में आप लाइन खा रहे हो, Yes, sir. कहीं कहीं बीच में आप, तो मुझे लग रहा थोड़ी सी स्पीड को रखो, कंट्रोल रखो। Yes, sir. मतलब ऐसा लगे कि क्लियरली आप बोल रहे हो। मुझे बीच में लगा कि आप जो बोल रहे हो उस लाइन में बीच में जो है वो क्या कहते हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है। ठीक है। और कुछ एक बेसिक क्वेश्चन नॉर्मली जिनको हम एचआर क्वेश्चंस बोलते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, क्यों पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हो? ठीक है, वो ठीक है, आपने पीएसयू के बेनिफिट बता सकते हो। वाई एनपीसीएल क्यों ही स्पेसिफिकली ज्वाइन करना चाहते हो? आपने न्यूक्लियर रिलेटेड पीएसयू है और कुछ इस तरह का बताया, कोई और सर चीजें बताई। थर्मल फील्ड है सर, पावर जनरेशन फील्ड है, तो इस तो वजह से। आपको क्लियरली बताओ ना, आपको बताना है तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओ और उससे लिंक करो उसको। Yes, अगर आपका सब्जेक्ट भी मेरे ख्याल थर्मल में ही है आपका प्रोजेक्ट भी, तो yes, आप sir. इंटरेस्ट बताओ ना, उसी से लिंक करो कि क्यों आप डोमेन में जाना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट भी है और वो मैं नॉलेज यूटिलाइज भी कर पाऊंगा। ठीक है ना। बाकी पीएसयू से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कोई दूसरा पीएसयू आ जाता है, बेटर ऑप्शन देता है, तो चले जाओगे क्या? आप बोलोगे मेरी प्रेफरेंस इसके लिए है Yes, क्योंकि उसमें मैं, मुझे लगता है कि मैं अपना इंटरेस्ट एरिया है उसमें रह पाऊंगा और कंट्रीब्यूट भी कर पाऊंगा। ठीक है। yes, एनपीसीएल का अच्छा, कुछ एक मैंने आपसे जो उससे पूछा, क्या कहते हैं, डक्टिलिटी और सर स्ट्रेस डायग्राम। तो बाद में डिस्कस करता हूँ। उससे पहले जो आपका जो हॉबीज हैं, वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग रैंडम हॉबी थोड़ी हुई वो, फिर तो वो तो लेजर टाइम है, टाइम पास करने के लिए, वो हॉबी नहीं हुई। सर हॉबी उसको तो मैं आप follow रिपोर्ट कर दूंगा सर, वो मैं फ्लो में बोल दिया था लेकिन मैं बोलना नहीं होता। हाँ, तो वो इंटरेस्ट आप फॉलो करते हो सर चेस का ही सर है बेसिकली। ना। तो अगर मेरी स्विमिंग हॉबी है तो नॉट ओनली कि मैं स्विमिंग के बारे में पैशनेट रहूंगा, ऐसा नहीं होगा कि चलो कोई दूसरों को नहाते हुए देख लेते हैं। यस सर। ठीक है ना। तो उसको अगर वॉचिंग मूवी है स्पेसिफिक, कौन सी मूवीज पूछेगा, कौन सी मूवीज देखी हैं, फिर वो भी पूछेगा। तो जो भी चीज बतानी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और लगे कि हाँ ये है। ठीक है, इसको थोड़ा करो। चेस में जैसे आपने बताया तो फिर भी आप बता पाए मोस्टली। देख लो वोमेन का भी, अगर ऐसे नहीं बोलना है वोमेन को सेकेंडरी रखना है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। नरोड़ा के बारे में लास्ट टाइम मुझे लग रहा मैंने आपसे पूछा था, नरोड़ा के बारे में आपने वो तैयार नहीं किया पूरा। सर थोड़ा सा सर इंट्रो मैंने देखा था सर, बाकी सर ये लास्ट में एक क्वेश्चन नहीं बता पाए थे किस कौन कंट्रीज को सर मतलब बैक कर रही है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर, नंबर ऑफ रिएक्टर्स कितने हैं वहां पर, वो भी आपने असमंजस में बताया। सर 2 ही है सर, 540 मेगावाट से सर 2। तो बताओ ना, कन्विंसिंगली बताओ। फिर अगर दो है तो दो बताओ। अपने स्टेट की इन्फॉर्मेशन तो आपको कन्विंसिंगली बतानी पड़ेगी ना। यस आप ये नहीं बोल सकते आई एम नॉट श्योर बट मुझे लगता है कि दो है, ये करेक्ट आंसर, मतलब आंसर प्रॉपर नहीं रहेगा ना। ठीक है, कौन सी कंट्री का अगर बोल भी देते हो तो मे बी हो सकता है किसी ने सपोर्ट किया उस वक्त, तो चेक कर लो। अगर नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं जाएगा। ठीक है। और क्यों हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो आपने कहा अवेलेबिलिटी जो है न्यूक्लियर फ्यूल की जो है वो मेजर इशू है। मुझे डाउट है इस स्टेटमेंट के ऊपर कि अवेलेबिलिटी ही मेजर रीजन नहीं है।
अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे, लास्ट गवर्नमेंट में इनिशिएटिव लिए थे उस डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ एक ट्रीटीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे वेयर देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन इन द सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स टू कंट्रीज, बट यूएसए वगैरह ने सपोर्ट किया था, तो मे बी वो इतनी हिंड्रेंस नहीं है कि आपको उसकी इशू होगा। इंडिया ने के साथ न्यूक्लियर डील भी साइन की थी, उसमें वी हैड प्लेज कि हम जो है वो डाइवर्ट नहीं करेंगे मिलिट्री पर्पस के लिए एंड ऑल दैट। उसके बाद जो बहुत सारी चीजें ओपन अप हो गई थी हमारे लिए फ्यूल की सप्लाई के लिए। मेजर इशू मुझे लग रहा है कि एक तो आपका खासकर जो एनवायरमेंटल जो आपका उस सराउंडिंग एरिया में जो उसका इम्पैक्ट है, कुछ एक पास में इंसिडेंट हुए हैं, तो सेफ्टी इज द मेजर कंसर्न, एक तो वो है। दूसरा, इन द मेन टाइम आपका जो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर काफी फोकस चला गया है अब, ठीक है। तो दैट कुड आल्सो बी द वन ऑफ द रीजन, ठीक है। पहले तो चलो थी हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें थी बिकॉज ऑफ जो फ्यूल्स को सिक्योर करने की दिक्कतें थी, बट आई थिंक उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया था काफी, बट फिर साथ में सेफ्टी कंसर्न्स आ गए एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम न्यूक्लियर जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस चला गया, टेक्नोलॉजीज डेवलप होगी, तो मैं भी उस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि उतना फोकस नहीं दे रहे हैं या मतलब उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसको देख लो थोड़ा सा, Yes. एक ओपिनियन क्रिएट कर लो थोड़ा सा उसके लिए। एंड अच्छा, जो भी सब्जेक्ट्स आप बोलोगे क्या कहते हैं फेवरेट सब्जेक्ट्स में, उसमें थोड़ा इन डेप्थ में पता होना चाहिए। मटेरियल साइंस जो है थोड़ा सब्जेक्ट जो है वो इन डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, उसमें कई बार फंसने के चांसेस होते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो, Yes. ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो तो उसको आप लास्ट में बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें फेज डायग्राम वगैरह ये तो आपने ठीक बताया, फिर एनलिंग में चले गए। एनलिंग में जब एक्सप्लेन करने लगे तो वहां फंस गए आप। आपने कहा कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है और क्या कहते हैं टफनेस एरिया बढ़ जाता है। ऐसे रीजन नहीं आता, आप क्या करते हो जब मटेरियल को एनलिंग करते हो ना, जैसे मान लीजिए मटेरियल है, इसको मैंने डिफॉर्म किया कर दिया है, अब मैं दोबारा एनलिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसका ओरिजिनल ग्रेन स्ट्रक्चर रिस्टोर करने का काम कर रहा हूँ। Yes. अब इसका ग्रेन स्ट्रक्चर है कोई, Yes, sir. से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 10 mm खींच सकता हूँ लेटर से, Yes. मैं बोल रहा हूँ मैं 10 mm खींच सकता हूँ लेटर से। अगर मैं प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दिया तो डक्टिलिटी कम होगी, डिपेंडिंग अपॉन कितना प्लास्टिकली डिफॉर्म किया। 10 mm का था, मैंने मान लिया जो है उसे जो है 8 mm डिफॉर्म कर दिया, 2 mm ही फर्दर डिफॉर्म किया जा सकता है, उसको खींचा जा सकता है। पर आप चाहते हो कि मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और रिड्यूस करूं, तो आप क्या बोलते हो, ऐसे तो होगा नहीं। क्या करो, उसको हीट करो और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर ले जाओ, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर आओ तो आप ओरिजिनल ग्रेन स्ट्रक्चर रिस्टोर कर सकते हो, जैसे पहले था शुरू में बिना डिफॉर्म किए हुए, उस स्टेट पे ला सकते हो। तो Yes. आपने एनपी की ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन हुआ, रिफाइन का मतलब है कि आपने ओरिजिनल ग्रेन स्ट्रक्चर रिस्टोर किया। इसका मतलब है कि जैसे आप 10 mm पहले कर सकते हैं, अब दोबारा दोबारा उसको वही वैसे ही बन गया हो, कूलिंग की आपका वही स्ट्रक्चर आ गया, दोबारा डिफॉर्म करना शुरू कर दो, आपके लिए नया आ गया। तो इट इज नॉट कि आपका वो डायग्राम एक्सटेंड हुआ सेम, बट इट्स समथिंग लाइक कि आपने जो है वो दोबारा वही बना दिया, तो दोबारा प्रोसेस वहीं से शुरू हो रही है, समझ रहे हो। तो जो डक्टिलिटी पहले थी वो इंप्रूव होगी, जो स्ट्रेंथ थी वो डिक्रीज हुई। डिक्रीज का मतलब पहले आपने डिफॉर्म किया था, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई थी, अब जब एनलिंग की तो दोबारा वही स्ट्रेंथ ले आए जो कि ओरिजिनल मटेरियल की थी। Yes. इस तरीके से तो देख लो, अगर आपको लगता है कि आप इसमें स्ट्रांग हो तो उसको, क्योंकि जो चीज आप फर्स्ट में मेंशन करोगे हो सकता है उसको पिक कर ले वो। तो फर्स्ट सब्जेक्ट या वो बताओ जिसमें आपका कंफर्ट लेवल ज्यादा हो, अगर उसने वो पिक कर लिया और तो एटलीस्ट यू मस्ट बी इन पोजीशन टू आंसर, ठीक है। और सॉम के आई थिंक आई डोंट नो, लास्ट टाइम हमने स्नैप मॉक लिया था, आप स्नैप मॉक दे सकते हो और दे दो चाहे, अगर आपको लगता है कि स्टिल यू हैव टू गो फॉर, ठीक है। स्नैप मॉक मॉक तो आप देते रहो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के। तो ये थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हैं, उनको करो, राइट। एंड कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी मेरे से? नहीं सर, बाकी आपने सर सब बता ही दिया।
हाँ, तो इसमें इम्प्रूवमेंट कर लो और बाकी सब्जेक्ट मार्क्स तो देते रहो। Yes. और विशाल सर। Yes, thank you, sir. Manas, let me first discuss with you the technical part. I asked you, I started with actually load factor, capacity factor, availability factor, and the reserve factor. तो reserve factor तो आपने ठीक बताया. Availability factor होता है बच्चे for how much time the power plant is available to produce electricity Yes, sir. for a particular time period. Like suppose एक साल में कितना टाइम के लिए पावर प्लांट अवेलेबल रहा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अवेलेबिलिटी फैक्टर. Yes, मतलब sir. इट इज अ काइंड ऑफ मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी Yes, sir. कि अगर पावर प्लांट में बहुत फ्रीक्वेंट फेलियर हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट शटडाउन हो रहा है, तो क्या होगा, आपका अवेलेबिलिटी फैक्टर विल बी लो. Yes, sir. Regarding point for a particular time duration, how much time the power plant is available to produce electricity divided by the total duration of the period, total period. Yes, sir. उसे हम क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी फैक्टर. कैपेसिटी फैक्टर आपका क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर होता है हाउ मच कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट यू आर यूटिलाइजिंग, इट्स द रेशियो ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट डिवाइडेड बाय व्हाट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट वी कैन गेट, Yes, sir. दैट इज कैपेसिटी फैक्टर. रिजर्व फैक्टर क्या होगा, इट इज एक्चुअली द रेशियो, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स. रिजर्व फैक्टर इज ऑलवेज मोर देन 1. रिजर्व फैक्टर क्या होता है, इट्स द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट Yes, sir. डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड. तो रिजर्व फैक्टर हम क्यों रखते हैं, दिस एक्चुअली वी कीप फॉर द फ्यूचर ग्रोथ. लाइक आज आपने प्लांट लगाया, सपोज इन ए पर्टिकुलर रीजन टुडे लोड इज क्लोज टू 200 मेगावाट, तो आप क्या 200 मेगावाट के प्लांट थोड़ा लगाओगे, Yes, you will उससे go बड़ा for some higher, keeping the future growth in mind. So कुछ रिजर्व फैक्टर हम रख लेते हैं, जनरली क्लोज टू 20 to 25%, नॉट मोर देन दैट. तो रिजर्व फैक्टर जो होता है ना, वो क्लोज टू 1.2 1.25 होता है. चलिए बाकी आपने, आई आस्क्ड यू अबाउट देन अवेलेबिलिटी, वो मिस कर गया आप ना, अवेलेबिलिटी फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो होता है, दैट इज u minus t naught s plus p naught v. तो वो टर्म तो आपने भूल ही गया, p naught v वाली है ना. वो मैं भूल इट इज नॉट गिब्स फंक्शन, h minus t naught s, वो गिब्स फंक्शन में हो जाएगा, है ना. तो याद रखना है, जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है ना, उसको याद रखना है. बोलर का एसेसरीज आपने ठीक बताया, इकोनोमाइजर वगैरह जो भी अपने एसेसरीज बताई, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, वो ठीक थी. आइसोटोप्स को ये थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए ना. बाइंडिंग एनर्जी जो है वो लोअर जो हमारे एटम्स हैं उनका भी कम होता है, और जो हाई, जो हैवी न्यूक्लियेट्स हैं उनका भी बहुत कम होता है. सो इंटरमीडिएट जो आपके मेटल्स हैं लाइक आयरन, उनका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम. सो ऑलवेज इन लोअर न्यूक्लियेट ट्राई टू जॉइन टू मेक सम स्टेबल न्यूक्लियाई. तो स्टेबल न्यूक्लियाई कब बनेगा, व्हेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर विल बी हाई. तो वो बीच में कुछ जो मिडिल लेवल जो आपके एलिमेंट्स हैं इन द रेंज ऑफ क्लोज टू 26 27 एटॉमिक नंबर, तो उनका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है. तो हैवियर न्यूक्लियस का भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, दे ट्राई टू स्प्लिट टू फॉर्म ए न्यूक्लियाइड ऑफ हायर बाइंडिंग एनर्जी. तो एंटायर जो फिशन है दैट डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट पर न्यूक्लियर ओनली. तो एक एटम स्प्लिट करता है, न्यूक्लियाइड स्प्लिट करता है टू फॉर्म सम न्यू न्यूक्लियाइड व्हिच इज हैविंग हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. आइसोटोप वगैरह थोड़ा बहुत बेसिक देख के जाओ अपना. बाकी आई आस्क्ड अबाउट थ्रोटलिंग 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो 334 होता है वैसे, 334 किलो जूल पर केजी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. 334 किलो जूल पर केजी आपका होता है लेटेंट हीट. So amount of heat required to be extracted from 1 ton. 1 ton का मतलब सर 1 US ton, because that definition was given by SI, और that is close to होता है 907 kg. Yes. 1 ton is close to 907 kg, short ton बोलते हैं इसको. तो 907 kg वाटर में से कितना हीट आप निकालें at in 24 hour, which is at 0 degree Celsius, to convert it into ice at 0 degree Celsius in 24 आवर. तो थोड़ा बहुत देख के जाओ. चलो ये तो टेक्निकल तो आप फिर भी मेरे को लग रहा है कि आप हैंडल कर लोगे, somehow you answered. एक कुछ मिस नहीं करना है जब आप इसको बता रहे हो ना, तो ट्राई टू डिफाइन इट कंप्लीटली. जल्दी मत करो कि लाइक
हाफ हार्ट से एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि आप बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो. ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन दैट एक्सप्लेनेशन मानस. अगर ऐसा, अगर देखो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली कि दे विल आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस. इवन इफ यू आर एबल टू इम्प्रेस देम इन 5-6 questions only, so then there are chances they will not ask you much questions. This is a human nature मानस. तो पूरे के पूरे दिल से बताना है. अभी वो थोड़ा सा मिसिंग है, ऐसा लग नहीं रहा कि आप दिल से बता रहे हो. आर यू गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. तो हाफ हार्टली लग रहा है थोड़ा सा, है ना. तो थोड़ा सा एनर्जी पुट करना है और थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना है एटलीस्ट. Yes. ठीक है. बाकी टेक्निकल नॉलेज आपका ठीक है, आप हैंडल कर पाओगे व्हाट आई थिंक. ठीक है. बाकी ये जो थोड़ा सा आप सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो उसका बेसिक रिवाइज करो और पावर प्लांट का थोड़ा वो देखो. ओके. So these are the feedbacks from my side. Once anything if you want to ask, you can ask. Like if I missed any technical part, technical question, then you can raise your query and then I will discuss that. सर वो जो सर हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर वाला जो क्वेश्चन है सर, उसमें जो वो आप कर्व आपने ठीक नहीं बनाया. जो बॉइलिंग वाला कर्व है ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. बाकी प्लांट वो तो ठीक है, आपने ये ठीक बताया कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगा बिकॉज एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी इज कम होगी. Yes. Your mean temperature of heat addition is very high, so your efficiency is going to increase. आपका प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगा that will be less. बेंसन बॉयलर होता है बच्चे, जो बोलते हैं ना सुपर क्रिटिकल बॉयलर, बेंसन बॉयलर. यस सर. सर तो कर्व सर एक्चुअली सर कॉपी में सर ऐसे मतलब एक जगह सर बना हुआ था, लेकिन सर एक्चुअल में सर कर्व कैसा होगा सर, जो मतलब जो स्पेस चेंज हो, मतलब सुपर क्रिटिकल वाला पार्ट सर जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व ही बनाओ उसको. ठीक है. बॉइलिंग में हम ऐसे तो कांस्टेंट प्रेशर कर्व की तरह ही दिखाते हैं ना. अभी यहाँ पे तो यू आर नॉट इन वेट रीजन, तो आपको कोई कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस तो नहीं मिलेंगी. नहीं सर. ठीक है. so you will get that curve only, not a straight line, something like constant pressure curve. critical point क्या होता है and how we can define that critical point, वो थोड़ा वो देख लेना. ठीक है मानस. any other query? नो सर. okay. Okay मानस, good luck and keep preparing.